سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چاند نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام بدھ 17 جون کو ہوگی، یوم عاشور جمعہ 26 جون کو ہوگا۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ حتمی اعلان چیئرمین مرکزی روزہ حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام 1448 ہجری بدھ 17 جون کو ہوگی، یوم عاشور جمعہ 26 جون کو ہوگا۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ محرم الحرام کے دوران عزاداران کو صاف ستھرا ماحول اور بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کا عزم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع وسطی نے کنٹیجنسی پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ امام بارگاہوں، مجالس اور جلوس کے راستوں پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شکایات کے فوری ازالے کے لیے خصوصی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ عاشور میں صفائی انتظامات، عزاداروں کی سہولت اولین ترجیح۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مطابق ضلع وسطی میں 40 بڑی امام بارگاہوں اور 350 سے زائد مجالس و جلوس کے مقامات پر صفائی اور کچرا اٹھانے کے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع وسطی ارشاد ارائی کا کہنا ہے کہ ایام عاشور کے دوران 3 شفٹوں میں سویپنگ اور گاربیج لفٹنگ کا عمل جاری رہے گا تاکہ عزاداران کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہماری جو ٹیم ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی، وہ ہم نے سائیکل رکشوں پر ترتیب دی ہے، جس میں 3 لیبر اور ان کے ساتھ ان کا سپروائزر ہوگا، جو کہ 24 آورس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری جتنی بھی گزرگاہیں ہیں، مجالس ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، مین روڈ ہیں، وہ مستقل ہمارا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ خدمت کرتا رہے گا، صفائی ستھرائی کے انتظامات کرتا رہے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران بوہری کمیونٹی کے مذہبی اجتماعات اور سرگرمیوں کے لیے بھی خصوصی صفائی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ مختلف علاقوں میں اضافی عملہ اور مشینری تعینات کرنے کے ساتھ شکایات کے اندراج اور فوری کارروائی کے لیے 24 گھنٹے فعال شکایتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں ہم نے ایک اسپیشل سیل قائم کیا ہے، جس میں ہمارے پاس اسپیشل اسکاؤٹ موجود ہے، لیبر موجود ہے، تاکہ عوام کی شکایت کا فوری طور پہ ازالہ کیا جا سکے۔ 15 سے 17 چھوٹے بڑے امام بارگاہ ہیں، جس میں بوری کمیونٹی کے مساجد بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 80 سے 85 مقامات پہ چھوٹے بڑے جلوس اور مجالس ہوتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ حکام کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران صفائی ستھرائی کے تمام انتظامات کی مسلسل نگرانی کی جائے گی اور عزاداران کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے متعلقہ عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ناظرین، کبھی رش، دھواں اور طویل انتظار اورنگی ٹاؤن کے سفر کی پہچان ہوا کرتے تھے، جہاں چند کلومیٹر کا راستہ بھی گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، وہیں اب جدید سفری نظام نے رفتار کو نئی سمت دے دی ہے۔ اورنج لائن BRT صرف ایک بس سروس نہیں ہے، بلکہ ہزاروں شہریوں کے لیے آسان سفر کی امید بن چکی ہے۔ روزانہ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ اورنگی ٹاؤن کو شہر کے بڑے ٹرانزٹ نیٹ ورک سے بھی جوڑ رہی ہے۔ اورنج لائن کے اس بدلتے سفر کی مکمل کہانی اقصیٰ شاہد کی خصوصی رپورٹ میں۔ رنگ برنگے دھاگے، باریک گرہیں اور ہنرمند ہاتھ، فرش کی زینت بننے والے خوبصورت قالین دراصل محنت، صبر اور فن کا ایسا امتزاج ہے جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں آج بھی کاریگر اپنے روایتی ہنر سے دھاگوں کو شاہکار میں بدل دیتے ہیں۔ دعا شکیل کی رپورٹ۔ جیسے کہ ہمیں ناظرین پتا ہے کہ قالین جو ہیں ہر گھر کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔ گھر میں جاتے ہی سب سے پہلے نظر جو ہے خوبصورت قالینوں پر پڑتی ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی گھر ہو، خوبصورت قالین ہو تو وہ گھر کی خوبصورتی ہی نکھار دیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ خوبصورت قالین بنتے کیسے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے، تو چلے میرے ساتھ۔ اور لانڈھی میں قائم قالین کے ایک کارخانے میں ہنرمند کاریگر نے اپنے ہاتھوں سے خوبصورت کارپیٹس تیار کر رہے ہیں۔ باریک گرہیں، رنگوں کا امتزاج اور نفیس ڈیزائن اس فن کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ قالین سازی ایک صبر آزما عمل ہے۔ پہلے ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے، پھر فریم پر دھاگے چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاریگر ایک ایک گرہ جوڑ کر نقش و نگار تخلیق کرتے ہیں۔ بڑے سائز کے ایک قالین کو مکمل ہونے میں کئی دن اور بعض اوقات کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ معمولی سی غلطی بھی پورے ڈیزائن کو متاثر کر سکتی ہے۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ کارپیٹ سازی صرف روزگار نہیں بلکہ ایک فن ہے جس میں محنت، مہارت اور برسوں کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ اس کا ایک نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ کلر۔
उसी हिसाब से हम रंग निकाल। छोटे कालीन को बनता है तकरीबन 1.25 महीना, 1 महीना हुआ है। 1 महीना हाँ ना, इसमें कीड़ा वीड़ा भी लग सकता है, इसकी केयर होती है बहुत ज़्यादा। तो हमने ये काम सीखा और बाहर मुल्कों में भेजा मैंने, बना के बाद में जवानों पर पढ़ा भी इसी, लिखा भी इसमें, घर भी बनाया, सब कुछ तरक्की, मगर इसमें मतलब पैसा नहीं है, बहुत कम उजरत है। ये दिन भर काम करते हैं कोई कारीगर, तो उनको 300-400 रुपये ज़्यादा नहीं होता, 12 घंटे काम करवाओ। जदीद मशीनरी के बावजूद हाथ से बने कारपेट्स अपनी मुनफरिद पहचान बरकरार रखे हुए हैं। मकामी मार्केट के साथ बैरूने मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। कारपेट सिर्फ फर्श की जीनत नहीं बल्कि हुनर, सकाफत और मेहनत का एक ऐसा शाहकार है जिसकी हर गिरा एक कारीगर की लगन की कहानी सुनाती है। हाथ से बने कालीन न सिर्फ हमारे घरों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि ये हमारी सकाफत और सदियों पुरानी दस्तकारी की पहचान भी है। एक एक धागा मेहनत, सब्र और महारत से जोड़ा जाता है जिसमें हमारे कारीगरों की फनी सलाहियतें भी झलकती हैं। कैमरामैन अमजद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। कराची में डकैती और लूट मार की वारदातें जारी हैं। पुलिस भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक। एक हफ्ते के दौरान 34 पुलिस मुकाबले, 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स हलाक, 43 जख्मियों समेत 52 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। में जराइम बरकरार, पुलिस के क्रैक डाउन में भी तेजी। कराची पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। कराची पुलिस और मुल्ज़मान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 34 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 6 मुल्ज़मान हलाक हुए। पुलिस ने 43 जख्मी डाकू समेत 52 मुल्ज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात में 976 से ज़ायद मुल्ज़मान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्ज़मान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। मुल्ज़मान से 65 किलोग्राम चरस और 4 किलोग्राम से ज़ायद आइस और क्रिस्टल और हेरोइन मिली। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 130 इक़साम का गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 30 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। सिंध पुलिस की जानिब से कराची में स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी का दावा। पुलिस हुकाम का कहना है कि रवां साल के 5 माह के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में 9% कमी आई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से जारी स्ट्रीट क्राइम के आदाद शुमार सिटी 21 ने हासिल कर लिए। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। में कमी का दावा, अमन और अमान पर सवाल बरकरार। सिंध पुलिस ने कराची समेत सिंध भर में जराइम में नुमाया कमी का दावा कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से जारी तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक रवां साल के 5 माह के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम में 9% कमी आई। रवां साल के 5 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 25,457 वारदातें रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता बरस इन वारदातों की तादाद 28,033 थी। डकैती मुज़ाहमत पर 5 माह के दौरान 28 अफराद कत्ल हुए। गुज़िश्ता बरस 5 माह में 45 अफराद मारे गए थे। 5 माह के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 90 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता साल जख्मी होने वालों की तादाद 145 थी। रवां साल मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में इजाफा हुआ। 5 माह के दौरान 7,789 मोबाइल फोन छीने गए। 765 गाड़ियाँ छीनी व चोरी की गयी। गुज़िश्ता साल 5 माह के दौरान 887 गाड़ियां चोरी हुई थीं। 5 माह में 16,903 मोटरसाइकिलें छीनी व चोरी की गई। गुज़िश्ता बरस इनकी तादाद 19,860 थी। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मजमूई तौर पर 9.19% कमी हुई। मिराज अख्तर, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान में तैनात फिलिपाइनी सफ़ीर ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क कराची ऑफिस का दौरा किया। फिलिपाइनी सफ़ीर, उनकी अहलिया और एजाज़ी काउंसिल जनरल ने इदारे की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान में तैनात फिलिपाइनी सफीर का सिटी न्यूज़ नेटवर्क कराची ऑफिस का दौरा, इदारे की सहाफती खिदमात को सराहा। बर वक्त और मुस्तनद मालूमात की फरहमी में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के किरदार काबिल सताइश। फिलिपाइनी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अवामी रवाबित से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी हम आहंगी में इजाफा होगा। But independence in general, no? You know, like Pakistan, the Philippines also had to fight very hard for its independence. It wasn't given to us freely. We had to earn it through sacrifice, through the loss of lives, and in Pakistan's case, it was the same. So this is a celebration not just of Philippine independence, but of the idea that independence is something you fight for, and it's something that you should value and protect by any means possible. फिलिपाइनी सफीर की अहलिया ने पाकिस्तानी पकवान से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कराची की मशहूर निहारी और नान उनकी पसंदीदा डिशेस में शामिल हैं। I love your dishes, especially the beef nihari and the chicken biryani and so much more.
We also love the paratha and the bread that you have. एजाजी कौंसिल जनरल इमरान यूसुफ का कहना था कि फिलिपाइन पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के सुनहरे दौर में दाखिल हो चुके हैं। और जिस तरफ एम्बेसडर ने कहा कि हमारे ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं, हमारे $370 मिलियन की एक्सपोर्ट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान फिलीपींस के ऊपर है, बहुत सारे MOUs जो है वो साइन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो खुसूसी अफराद के लिए MOU फिलीपीन गवर्नमेंट साइन कर रही है, और ये रिलेशनशिप जो है ना वो बढ़ने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क इंतजामिया और फिलिपाइनी वफ्द के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इकरा यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी जामियात के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर निसार इकराम ने तालीमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। बांग्लादेश के मुख्तलिफ जामियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद के मौके पर दोनों ममालिक के तालीमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान बांग्लादेश तालीमी मैदान में पेश बांग्लादेशी तालीमी वफ़द की इकरा यूनिवर्सिटी आमद, तालिब इल्मों की जानिब से शानदार मौसीकी पेश की गई। इकरा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तालीमी ताउन को फरोग देने के लिए इस्तकबालिया मुनक्किद किया गया, जिसमें बांग्लादेश की मुख्तलिफ जामियात के वफ़द ने दोनों ममालिक के तालीमी रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। The most important, the people that we met there were the young people of Bangladesh, young men of Bangladesh, very energetic, brilliant, intelligent, and ambitious to do things and represent the future of Bangladesh and future of the region too. वाइस चांसलर व सदर प्रोफेसर डॉक्टर निसार इकराम ने कहा कि तालीम, तहकीक और इल्मी तबादलों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत दी जा सकती है। We are totally committed to the HEC initiative of HEC Pakistan Bangladesh Knowledge Corridor initiative, and we were amongst the few who wrote to HEC that we are ready to accept students from Bangladesh, and I think we received the nomination of 3 or 4 students, but we also hosted the High Commissioner from Bangladesh. प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर जहांजेब खान ने दोनों ममालिक की जामियात के दरमियान मुश्तरका तहकीकी मंसूबों, तलबा व असातिज़ा के तबादलों और तालीमी इश्तराक को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। were there. It was a hard work we put in, but when you see the result, so all is, I believe, we agree with it and we accept it and we welcome it. तकरीब में जामियात के नुमाइंदों, सिफारती शख्सियात और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों ने शिरकत की और पाकिस्तान व बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती और इल्मी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। कैमरामैन नवेदुर रहमान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए IPO के तनाजुर में गोंग तकरीब का इनेकाद। नई लिस्ट होने वाली कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च चाय पाकिस्तान और चीन की बाहमी शराकत दारी का खूबसूरत इम्तिजाज करार दिया। तकरीब में चीन के कराची में तैनात डिप्टी काउंसिल जनरल समेत कारोबारी और मालियाती शोबे के नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सजी नए IPO के तनाजुर में गोंग तकरीब से वर्चुअल खुताब करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बजट ने सफर की दुरुस्त सिमत की निशानदेही कर दी है कि पायदार माशी तरक्की कैसे हासिल की जा सकती है। आइंदा माली साल में मजीद माशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। The budget that was announced and presented on Friday has given a very clear direction of travel of moving from macroeconomic stability towards sustainable and export-led growth, and alhamdulillah is being acknowledged
that way as well. वजीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में सरमायाकारों के एतमाद की गूंज सुनाई दे रही है। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स का मंसूबा ऐसे वक्त में परवान चढ़ा जब दुनिया कोरोना वबा के बायस माशी दबाव का शिकार थी। वजीर आजम के दौरे चीन के बाद CPEC के तहत बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फरोग मिला है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताउन में मुसलसल बेहतरी आ रही है। Now, obviously, I also see it in the context of some of you were with Prime Minister Shehbaz Sharif during his recent China visit. And as you know, in terms of CPEC Phase 2, it's all about B2B. And there's no better example of a B2B venture as a joint venture than Service Long March. I think if we can replicate and success transfer this model into other JVs, it will be fantastic for the country. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चीफ एग्जीक्यूटिव फरूख रजवाली ने कहा कि माशी दबाव के बावजूद वजीर खजाना ने एक मुस्बत बजट पेश किया है कि हिस्टोरिकली हमने जो US डॉलर रिटर्न दिया है कैपिटल मार्केट ने वो 8% से ज़्यादा है इन US डॉलर टर्म। इट्स नॉट बैड एट ऑल। सो लोगों को आई थिंक एक तो SLM जैसे स्टॉक्स जब लिस्ट होते हैं साइज़, मैं हमेशा कंप्लेन करता रहा हूँ कि हमारे पास साइजेबल स्टॉक नहीं आते, छोटे साइजेस आ रहे हैं। तो SLM वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा फॉर अदर middle to large tier companies to also use the PSX to list. तकरीब के शुरा का कहना था कि नई कंपनी की लिस्टिंग न सिर्फ चीनी सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम करेगी बल्कि पाकिस्तान में मुश्तरका सरमायाकारी के नए मौके भी पैदा करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।